Good evening, students. Now, today we are going to start the topic gravitation, lecture number 8. I think it is going to the last topic of the same topics. We have to solve the maximum questions. Let me discuss what you have to learn in this topic. Uh, First, the difference between small g and capital G. You have to find out the relation between g and small g. This value is the universal constant that fixed, you know very well. This is known as the universal gravitational constant. The value will be never change. This value is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per, and this value is a accelerated gravity approximately 9.8 meter per second square. That we know very well. And problem discussions, just few problems, and we already discussed with the same formulas. How much formulas still we learn now, and about that formulas we have to discuss the problems. The very first formula we discuss about the force equals to m v square by r, that is centripetal force, correct? The second formula we discuss about F equals to g m by r square or d square, okay? And the third formula we discuss the F equals to W equals to m into g, weight and force equals to product of mass and gravity. Then the relation between that one we discuss gm by r square, then formula of ve to gr, okay? That much formulas we discuss till the topic, and related to that we discuss the formulas numericals also. Now here the first we have to differentiate about that the gravitational force and acceleration due to gravity. Gravitational force क्या है आपका और acceleration due to gravity क्या है? The gravitational constant, that is a capital G. ये क्या है आपका capital G, और acceleration due to gravity is known as a capital small g. तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बोलना है इसके, है ना? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, यानी सब तरफ कांस्टेंट है वो, है ना? इट विल बी द यूनिवर्सल कांस्टेंट. ये क्या है तुम्हारा, इसके नाम में ही दिया है, एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन ऑन शेप एंड प्लेस. प्लेस पे डिपेंड कर रहा है, डेप्थ नहीं हो तो भी कम होगा, है ना? उसका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएशन. इसमें क्या है तुम्हारा, वेरिएशन. वी हैव द we are finding the small g having the variation. This value of constant g is fixed. कितना इसकी 6.673 into 10 raised to minus 11 है. इसकी वैल्यू क्या है, g is a variable 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? यहाँ पे क्या है, न्यूटन, यूनिट क्या है इसका, न्यूटन kg स्क्वायर, है ना? यहाँ पे क्या प्लस माइनस क्या होता है तुम्हारा 0.035 का वेरिएशन आता है ना? तो इसका क्या वेरिएशन आता है यहाँ पर. तो यूनिट क्या है, इट इज इसका ये क्या है, इसका यूनिट अलग है. इसका क्या है तुम्हारा, इट इज अ एक्सेलरेशन. इसका यूनिट क्या है तुम्हारा, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दैट फोर्स इज, दैट इज द वैल्यू क्या है तुम्हारा, कंपेयर टू इज वेरी वीक. ठीक है, जी के वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्रेविटी इज हाउ मच, 6.16 minus 11, है ना? ये क्या वैल्यू बहुत कंपेरेटिवली लेस है, और इसकी वैल्यू क्या 9.8. मैग्नीट्यूड्स आर डिफरेंट, magnitudes are the different. The how we are going to relate that relation between the small g and capital G equals to gm by r square, है ना? यहाँ पे रिलेशन बता सकते हैं, g क्या है तुम्हारा, कैपिटल G इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप g इक्वल्स टू gm बाय r स्क्वायर. तो यह वैल्यूज है, कैपिटल G की वैल्यू क्या है, g r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, if we are to just find the relation, है ना? तो इतने इसके डिफरेंस है. और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है तुम्हारा, स्पीड इज गोइंग टू इज ऑलवेज चेंजिंग विद स्पीड टाइम. ठीक है, एक्सेलरेशन है क्या, स्पीड उसकी, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी नोन एज द एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन है, और वो क्या है तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है. इट विल बी ऑलवेज अट्रैक्टिंग इस काइंड ऑफ द फोर्स ओनली. तो क्या है, मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट वैल्यू है. और ये क्या है तुम्हारा पुलिंग फोर्स. ये क्या है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, इट इज अ पुलिंग फोर्स. ये क्या करे तुम्हारा, खींचने वाला फोर्स है ना? इट इज ऑलवेज द पुलिंग फोर्स, एंड जी इज द कांस्टेंट
वैल्यू। जी क्या है तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए बोलते हैं अपन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसका रेशियो क्या होता है हमारा, हमेशा तुम्हारा फिक्स होता है, दो फोर्स और मास के बीच का रेशियो फिक्स होता है। दिस इज द रिलेशन। देन आफ्टर दैट जस्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। क्या देखना है आपको उसके बाद में, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखना है। लेट यू फाइंड कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास इज 1 किलोग्राम। मास कितना है उसका 1 किलोग्राम ड्यू टू द अर्थ एंड विद द फोर्स on the same body of another bodies of mass is 1 kilogram at a distance of 1 meter from the first body. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? Then find the mass of the earth is given and radius of the earth is given. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या पूछा उसने, देखो compare the gravitational force of the body of mass 1 kilogram due to the earth with the force of the same body, है ना? तो क्या करना है आपको, of another body of mass 1 kilogram, तो उसका क्या करना है, कंपेयर करना है आपको, है ना, जब उसका फोर्स कितना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी। फर्स्ट बॉडी से डिस्टेंस क्या है 1 मीटर है। पहले क्या था, पहले क्या थी, कहाँ पे था बॉडी तुम्हारी, पहले कहाँ थी, सरफेस पे थी। देखो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम ड्यू टू द अर्थ विद द फोर्स ऑफ एंड द सेम बॉडी ड्यू टू द अनदर बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है ना। अर्थ का मास कितना है तुम्हारा 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास दिया है आपको, है ना। 1 किलोग्राम एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारी डिस्टेंस कितना है इसका 1 मीटर दिया है ना, फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी। तो आपको क्या करना है इसी कंडीशन में, आपको क्या करना है, इसका फोर्स निकालना है। निकाल सकते हो आप, फोर्स निकाल सकते हो क्या? फॉर्मूला पता है आपको, क्या है फॉर्मूला एफ का, व्हाट इज फॉर्मूला एफ, जी एम बाय आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस दिया है आपको कौन सा 1 मीटर दिया है, बॉडी का डिस्टेंस कितना दिया है आपको 1 मीटर है। डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, एक्चुअली ये डिस्टेंस 1 मीटर है। 1 मीटर बहुत कंपेरेटिवली बहुत लेस है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। 1 मीटर यानी क्या, 6 × 10⁻24 के कंपेरिजन में 1 मीटर क्या है तुम्हारा बहुत लेस है। देखो the compare the gravitational force on the body of mass 1 kilogram due to the earth with the force of the same body due to the another body, okay, another body of mass 1 kilogram। तो इसका क्या करना है, एक इसका करना है, और यहाँ पर 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बॉडी, इसका डिस्टेंस 1 मीटर है। ये क्या है तुम्हारी, ये इसका 1 मीटर, तो इसका कंपेयर करना है। तो इसका 1 किलोग्राम और इसका भी 1 किलोग्राम है एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी। वो एक फर्स्ट बॉडी से तुम्हारा डिस्टेंस उसका है 1 मीटर, तो आपको उसकी फोर्स निकालना है, वैल्यूज निकालना है। तो इसका तो फोर्स कंपेरिजन इसमें तो आएगा नहीं, क्योंकि अर्थ का फोर्स है। इसमें क्या आएगा फोर्स तुम्हारा, एफ जी कितना है 6.673 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24, और 1 को नहीं लिखे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, अर्थ का डिस्टेंस 6400 है ना। फर्स्ट कंडीशन में मैं कौन सी कंडीशन जा रहा हूँ तुम्हारी, ये कंडीशन, तो कितना है 6400 इंटू 10⁻3 इसका स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 निकाल दो, निकल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों का फोर्स निकालना है, इसका और इसका, 1 और 1 का। एफ इक्वल्स टू जी कितना है 6.673 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे एफ इक्वल्स टू कितना आएगा तुम्हारा जी, वो कंडीशन में क्या है फोर्स और ग्रेविटी क्या होगी तुम्हारी सेम होगी, है ना। तो फोर्स और ग्रेविटी कितनी होगी सेम, यानी कितना होगा फोर्स, कितना होगा तुम्हारा 6.673 न्यूटन। फोर्स क्या होगा तुम्हारा, सॉरी इंटू 10⁻⁻ न्यूटन, ये होगा तुम्हारा फोर्स। समझे क्या? तो इतना ही जैसे सिंपल प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स है, कुछ क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए मुझे। देन we'll discuss a few questions only, and then we'll wind up the today's sessions. Just they are asking about the few questions are there, and the questions from your side. इतना ही आज, क्योंकि ऐसे अपना टॉपिक अभी खत्म हो गया है ना। तो आपके दिमाग में कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, या कुछ क्वेश्चंस बुक में के सॉल्व करना है तो मुझे बुक्स दीजिए, मैं बुक्स में के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इफ सपोज अनसॉल्व क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक, लेट मी सॉल्व, ओके। कुछ क्वेश्चंस है क्या वो बुक्स में, है क्या वो
चलो दीजिए, दिखाइए मुझे, बुक दीजिए. Now we'll discuss the questions from your book now. I will give data, just to calculate the questions from the page number 15. देखिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5(1) बराबर. बाकी थ्री है ना. क्वेश्चन नंबर 5(1). नाउ लिसन, क्वेश्चन नंबर 5 में का फर्स्ट ए. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका? ए देखना है अपने को. ए फर्स्ट वाला देखिए अभी, ए वाला. तो क्या पूछ रहा है? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट इज 5 मीटर ऑन द प्लैनेट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? तो आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ जी निकालना है. निकाल जाएगा आपको ये. क्या पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड. टाइम कितना ले रहा है ऑब्जेक्ट? 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट 5 मीटर. व्हाट द वैल्यू ऑफ जी? तो आपको क्या करना है? वैल्यू ऑफ जी निकालना है ना. कैसे निकालोगे? क्या पूछ रहा है? एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका, छोड़ देने के बाद में क्या हो रहा है? उसको आने के लिए कितने लग रहे हैं सेकंड? 5 सेकंड लग रहे हैं, है ना. और फ्रॉम द हाइट 5 मीटर, उसकी हाइट कितना दिया? उसकी 5 मीटर दिया है. व्हाट द वैल्यूज ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? तो वो प्लैनेट पे तुम्हारी वैल्यू ऑफ जी प्लैनेट पे कितना होगा निकालना है. स्मॉल जी की वैल्यू आपको निकालना है. क्वेश्चन समझ में आया क्या? काइनेमेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करो इसमें. तो क्या है फॉर्मूला यहाँ पे? यस इक्वल्स टू यू टी 1/2 AT स्क्वायर. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 0 है, तो u की जगह पे क्या करना है आपको? और a की जगह पे क्या है? तुम्हारा प्लैनेट की ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट है ना. और नेगेटिव आ रहा है, नीचे छोड़ने के बाद में ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है. चलो अपन a की जगह पे ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट पे. और टाइम अपने को दिया है 5 सेकंड. डिस्टेंस कितना दिया है आपको? टाइम कितना दिया है? 5. और डिस्टेंस कितना दिया है आपको? 5 मीटर. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर. तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा? यस 5 दिया है. 5 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 प्लस 1/2 जी ऑफ प्लैनेट निकालना है आपको. और टाइम कितना दिया है? 5 का स्क्वायर. करेक्ट है. 5 का इंटू 5 का स्क्वायर कितना है? ये. तो फिर क्या हो जाएगा? ये 5 और ये 5 क्या होगा तुम्हारा? कैंसर. तो अब ये 2 डिनोमिनेटर में इधर आए बाद क्या होगा? 2 न्यूमरेटर में 2/5 इक्वल्स टू जीपी. 2/5 क्या है तुम्हारा? वैल्यू ऑफ द प्लैनेट. 2/5 का मतलब कितना होता है? जीपी इक्वल्स टू 0 पॉइंट, तो कितना होगा तुम्हारा? 20. 5 4 सा 20 बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. समझ में आया क्या आपको? कैसे आया? चलो तो इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना. आपको ऐसे लगता है कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो छोड़ देंगे, आपको लगता है डिफिकल्ट है तो वही सॉल्व करेंगे, है ना. क्वेश्चन कुछ काफ़ी बहुत सिंपल है, इसमें कोई क्वेश्चन है. क्या करना है? सभी करना है. चलो सभी कर लेंगे. देखिए, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट A is a half of the radius of the planet B. The mass of the A is ma, and what is the mass of B? So that the values of G on B is half of the values of A. क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो, रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज A. रेडियस क्या प्लैनेट का दिया है? रेडियस ऑफ द प्लैनेट A इज रेडियस ऑफ प्लैनेट A दिया है. इसका नाम क्या है? A प्लैनेट का नाम है. ये प्लैनेट का नाम क्या है? A. द रेडियस ऑफ प्लैनेट A इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B. ये क्या प्लैनेट तुम्हारा B है, तो इसकी रेडियस समझो तुम्हारी क्या R होती है, तो इसकी कितनी रेडियस तुम्हारी? R/2 है. सही है. इसकी रेडियस कितने? R/2 इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट B. इफ द मास ऑफ A इज ma, इसका मास कितना है तुम्हारा? ma है. एंड व्हाट इज द मास ऑफ B? इसका मास पता है क्या आपको? निकालना है. व्हाट इज द मास ऑफ B? सो दैट द वैल्यू ऑफ G ऑन द B, G of B कितना है? G of B is half of the value of A. G of B कितनी है इसकी? half of the value of G of A की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? half of the A. A की कितना है? आधा है. G of A की क्या है? B की वैल्यू कितनी है? आधी है. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या बोला उसने? देखिए, तो इसकी वैल्यू कितना है? G of A है
और इसका मास कितना दिया, एम ए दिया, इसका मास पता नहीं है अपने को, तो मास निकालना है ना। और जी ऑफ बी कितना दिया उसको, हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ ए की ए से भी वैल्यू कितनी उसकी आधी है ना। तो तुम्हारा पता है रिलेशन जी कितना है, जी ऑफ प्लैनेट जी कितना होता है, जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो जी ऑफ प्लैनेट ए का निकालेंगे, या मैं जी ऑफ ए निकालता हूँ, है ना। तो जी ऑफ ए कितना है यहाँ पे, जी ऑफ ए आपको जी कैपिटल सेम है, मास ऑफ कितना है इसका एम ए है, और रेडियस कितनी है उसकी आर बाय टू, आर बाय टू का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ ए कितना आ गया आपका, जी एम ए डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, और 4 क्या आ जाएगा आपका ऊपर, तो इसकी आ गई क्वेश्चन नंबर 1, बराबर है। तो जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपकी, वो 4 जी एम एम बाय जी ए है, सॉरी जी ए डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू है ए की। अब निकालें उसी तरह से जी ऑफ बी निकालेंगे। जी ऑफ बी कैसे लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेम जी ऑफ बी, जी एम ऑफ बी डिवाइडिंग बाय आर ऑफ बी का स्क्वायर, करेक्ट है। तो यहाँ पे जी ऑफ बी कितना है, जी कितना है, सेम कांस्टेंट वैल्यू है। मास ऑफ बी पता है कि आपको, नहीं पता। आर भी कितना है तुम्हारा इसका, रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर करेंगे, बराबर है। तो जी ऑफ बी इक्वल कितना है, जी एम बी बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब पर आपको रिलेशन बताया, क्या बताया उसने, जी ऑफ बी कितना है आपका, ए के आधा है, जी ऑफ बी कितना है, ए के आधा है। तो जी ऑफ बी यानी कितना है, जी मास ऑफ बी बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, है ना, 1/2, और ए का कितना है तुम्हारा 4 जी एम ए डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये दिया है, बराबर है, बाय कंडीशन, है ना। कंडीशन क्या है आपकी, हाफ दिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, अभी ये आर स्क्वायर कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4, जी और जी कैंसिल। तो मास ऑफ बी कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए, समझ में आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए, गॉट इट। लेट मी प्रोसीड देन। देखिए अभी इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी, देखिए क्वेश्चन नंबर सी, the mass and weight of an object on the earth is given 5 किलोग्राम and 49 न्यूटन। तो कितना दिया, मास कितना दिया आपको, बोलिए 5 किलोग्राम, एंड वेट कितना दिया 49 न्यूटन respectively, the mass and weight of the objects of the earth, okay, what will be the values of on the moon। तो क्या करना है आपको, what will be the values of the moon, तो मून पे क्या होगा निकालना है, ये क्या अर्थ पे दिया है, बराबर है। तो मास ऑफ मून कितना होगा एंड वेट ऑफ द मून कितना होगा। एज्यूम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। मास इज नेवर चेंज, मास चेंज होता है कभी नहीं। तो जितना मास अर्थ पे उतना ही मास किस पे होगा, मून पे, बिकॉज मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इसको कैलकुलेट करने का काम ही नहीं। मास ऑफ मून भी कितना है आपका 5 न्यूटन। और जो है ग्रेविटी ऑफ मून क्या है, अर्थ से ग्रेविटी कितनी 6 गुना कम है ना। तो वेट कितना होता है तुम्हारा, वेट इज 5 इंटू ग्रेविटी, है ना। 5 इंटू ग्रेविटी कितना है तुम्हारा वेट होता है, बराबर है। तो वेट कितना दिया, मास कितना दिया इसमें 5, है ना। वेट कितना दिया 49 इक्वल्स टू 5 इंटू जी। तो जी कितना आ गया अपना 49 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 9.8, है ना। तो अर्थ का जी कितना है, नहीं दिया फिर भी निकाला ना, कभी कभी राउंड अप देते हो तो अपन निकाल दिया। और इसका जी क्या है तुम्हारा लेस देन 6 है। तो वेट भी क्या होगा तुम्हारा, वेट ऑफ मून, वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। तो वेट ऑफ अर्थ कितना दिया है आपको 49 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा फिर 6 1 जा 6, 6 7 जा 40, 6 8 आता है क्या, 6 8 जा 48, कैरी 1, 6 1 जा 6, बचे कितने 4, 6 6 जा 36, अगेन 4, देन इस तरह से आएगा 6। तो कितना आएगा आंसर तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 8.1666
चल इसको अप्रोक्सीमेटली अपन ऐसे लिख सकते हैं 8.167, है ना। तो ये क्या होगा तुम्हारा, और 17 यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 8.17 न्यूटन। ये होगा तुम्हारा वेट ऑफ द मून। मास तो उतना ही रहेगा, मास में चेंज आएगा क्या, नहीं, वेट उसका कम हो जाएगा। समझ में आ गया ये। द नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर डी। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज द हाइट इज 500 मीटर। तो ऑब्जेक्ट को क्या करें, अपन ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंक रहे तो हाइट जा रहा है कितना दूर को, हाइट कितनी रीच कर रहा है 500 मीटर। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपको वो निकालना है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक्स टू कम बैक ऑन द अर्थ। तो इसको वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी निकालना है, यू निकालना है और टाइम निकालना है। द एज्यूमिंग क्या करना है आपको, एज्यूम करना है जी की वैल्यू कितना दिया है उन्होंने 10 सेकंड्स को, मैंने बोला है ना। यहाँ पे आपको जी की वैल्यू गिवन है 10, हर बार 9.8 नहीं लेना है, जैसा उन्होंने दिया है वैसा लेना है। तो कैलकुलेट करके आपको कभी कभी फाइंड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करनी है, अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आप यहाँ से फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट, तो फाइनली जा रहा है यहाँ पे क्या होगा, वी कितना हो गया यहाँ पर 0, है ना। तो वो कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो क्या है फॉर्मूला आपका, यस इक्वल्स टू कितना है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यस कितना है तुम्हारा 500, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है आपको निकालना है, और अपन ये ले लेंगे, दूसरा इक्वेशन लेंगे, तीसरा लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है यू स्क्वायर प्लस 2 ए यस, है ना। ये इक्वेशन लेंगे। फाइनली हाइट कितनी हो गई आपकी 0, इनिशियल हाइट पता करना है आपको 2, जी कितना है आपका 10 दिया है, हाइट कितना दिया आपकी 500, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, चलो माइनस की वैल्यू है, बराबर है। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, यू स्क्वायर माइनस 2 जी एस, बराबर है, ऐसा होगा। तो अब इधर के बाद क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 500। तो u कितना आएगा, u इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो इसको क्या करता मैं अभी देखो 2 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं ऐसा, इंटू 500, 500 को भी मैं ऐसे लिखता हूँ 5 इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो अभी मैं यू स्क्वायर यू निकालना है, यू करने के लिए इसको क्या करेंगे स्क्वायर रूट में 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ग्रुप करने के बाद में एक 2 के ये 2 और ये 10 तो बाहर निकल गया। तो यू कितना आ गया फिर, यू इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 10, इज यू इक्वल्स टू 5 का 10 10 10 का 100। तो ये क्या यू कितना आ गया आपका 100 मीटर पर सेकंड, बराबर। अब क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, बराबर है। तो यहाँ पे इनिशियली तुम्हारा फाइनल तो तुम्हारा कुछ भी करो, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है ना। तो यहाँ पे टाइम अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी डाल दो यहाँ पे, फाइनल ऊपर जाके 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी निकालना कितना अपना 100 है, जी कितना है 10 और t, तो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू t। तो t कितना आ गया तुम्हारा 10। ये क्या टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने के लिए टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड। तो ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड लग रहा है, फिर से वापस आ रहा है आपका जो ऑब्जेक्ट, तो ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड और नीचे जाने के लिए भी कितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना होगा 10, बराबर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज 10 प्लस 10 दैट इज 20 सेकंड, समझे। हाँ, टाइम ऑफ असेंट जाने को 10 मिनट सेकंड और नीचे आने को 10, तो पूरे मिलकर कितना होगा तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड़ने का समय है ना, उतना देर सफर क्या जो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा तुम्हारा हवा में रहेगा। तो जाने के लिए 10 सेकंड और नीचे आने के लिए 10 सेकंड, तो पूरा मिलकर कितना टाइम ले रहा हो 20 सेकंड ले रहा है, समझे। उसके बाद में देखिए नंबर ई, देखिए ई, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकंड। तो बॉल टेबल पे से गिर गया है आपका, और आपको टाइम कितना ले रहा है नीचे आने के लिए 1 सेकंड ले रहा है। एज्यूमिंग दैट जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द स्पीड टू रीच द ग्राउंड। तो आपको क्या करना है, स्पीड निकालना है।
जो नेबिन पे आया है उसकी स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल, तो हाइट भी निकालना है। बहुत सिंपल था, है ना। टेबल पे बॉल है आपका, टेबल पे बॉल है तो नीचे गिर गया, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, यू कितनी थी आपकी, 0 थी, है ना। यू 0 थी तो आपको सेम वही इक्वेशन इस्तेमाल करना है। तो वहाँ पे आपको हाइट मिलेगी और क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, है ना। यहाँ पे ग्रेविटी क्या ले लेंगे अपन, जी लेना है, ग्रेविटी दिया 10 दिया है, तो इनिशियली क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट निकालना है, वी स्क्वायर निकालना है, इनिशियल कितना था आपका, 0 था, है ना, प्लस 2, जी कितना है आपका 10 है, हाइट कितना है पता नहीं क्या आपको, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन अपना नहीं चलेगा, इसमें से नहीं, ये नहीं लेगा अपन, यस पहला इक्वेशन लेना, दूसरा लेना पड़ेगा। अब यस दिया है ना इसमें, सॉरी यस दिया है ना, यस कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन लेना पड़ेगा, फर्स्ट से भी निकाल सकते, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है अपने को, v पता नहीं है ना, u 0 है, 0 प्लस a कितना है आपका 10, टाइम कितना दिया 1, तो v मिल गया अपने को, v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, v की वैल्यू आ गई अपनी कितना आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब करो, दूसरा भी ले सकते हैं तीसरा भी ले सकते हैं अभी, तो क्या करना है आपको, अभी हाइट निकालना है, तो तीसरा लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, यस यानी तुम्हारी मिलेगी आपको हाइट, है ना। तो वी स्क्वायर कितना है आपका 10 का स्क्वायर 100, इनिशियल कितना है तुम्हारा 0, बराबर है, इक्वल प्लस 2 जी कितना है 10 है क्या, और हाइट पता नहीं आपको निकालना है, तो इसको 200 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू, तो एच कितना आ गया 5 मीटर, बराबर है क्या, एच इक्वल से कितना आ गया 5 मीटर। देखिए उसके बाद में क्वेश्चन कौन सा है, यफ, है ना, बाद में कौन सा, उसके बाद में यफ, द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर गिवन, मास ऑफ अर्थ दिया है आपको, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, एंड मास ऑफ मून कितना दिया है आपको 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम ही दिया है। रिस्पेक्टिवली एंड डिस्टेंस ऑफ द, अपन ये निकाले शायद मेरे ख्याल से, अपन ये सेम एग्जांपल सॉल्व किए से मुझे याद आ रहा है, 84 × 10⁻5 किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या निकालना है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ऑफ कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो क्या करना है, एफ निकालना है आपको, एफ निकालना है, जी की वैल्यू कितना है, अभी फॉर्मूला क्या है अपना, एफ इक्वल्स टू जी एम मास ऑफ द एम ए इंटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डी स्क्वायर, है ना, मास ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और जी की वैल्यू दिया है आपको कितना है 6.673 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ दिया है कितना है आपको 6 × 10⁻24, मास ऑफ मून दिया है 7.4 × 10⁻22, और डिस्टेंस दिया है आपको 3.84 × 10⁻, ये कितना है किलोमीटर्स में दिया है, देखो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वी नीड टू कन्वर्ट इन मीटर, बराबर है, 5 × 10⁻3 इसका स्क्वायर, अभी क्या होगा तुम्हारा मीटर में हो गया, बराबर है, ये कितना था 5 था ना, तो कितना होगा तुम्हारा है 3.84 × 10⁸ मीटर बन गया। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद में आप कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली दिया है उन्होंने बुक में, सॉल्व करके देखो आप, तो 2 × 10⁻20 न्यूटन, आप सॉल्व करके देखो, शायद सेम एग्जांपल अपन ने पहले भी सॉल्व किया है, मुझे याद है, सेम एग्जांपल था, पिछले या कोई पीपीटी में होगा शायद, या फर्स्ट कोई लेक्चर में, अपने कोई लेक्चर में है ना, तो उसमें अपन देखते हैं ना फर्स्ट पीपीटी सेकंड पीपीटी में, कई तो अपन ने सॉल्व किया है, मुझे डेफिनेटली पता है, आप देखो वीडियो, उसमें मिलेगा आपको, देखिए। और इसके बाद में क्या करेंगे, एफ के बाद में जी, जी भी क्या है देखो, the mass of earth is given 6 × 10⁻24 and the distance between the earth and sun is given
ये भी अपन ने किया है एग्जाम्पल सेम ऐसे ही. द मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10⁻24 kg and distance between the earth and sun is given 1.5 into 10⁻11 meter, and if the gravitational force between is force दिया है आपको कितना दिया है 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, then what is the mass of sun? तो क्या है mass of sun आपको निकालना है. Same formula we have to use, again the same formula, F equals to G, capital G, mass of sun into mass of earth divided by distance का square. तो force दिया है आपको कितना दिया है force 3.5 into 10⁻22 force दिया है बराबर. इक्वल्स जी की वैल्यू कितना है 6.673 इंटू 10⁻11. तो मास ऑफ सन निकालना है आपको ms ये निकालना है. मास ऑफ अर्थ पता है कितना है 6 इंटू 10⁻24. डी कितना दिया है आपको 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर बराबर. इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर आएगा कितना 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू इसका स्क्वायर कितना आएगा तुम्हारा 2.25 इंटू 10⁻22 है ना. इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय तो यहाँ पे 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इक्वल मास ऑफ सन मिलेगा है ना. यहाँ पे मिलेगा आपको मास ऑफ सन. तो नीचे का पावर माइनस ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाएगा है ना. तो आप कैलकुलेट करो उसको 3.5 इंटू 2.25 इंटू 10⁻44 प्लस 11 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6.673 इंटू 6. तो कितना हो गया पावर ये आपका मास ऑफ सन आ जाएगा. तो कैलकुलेट कर दो इसमें आपको तो फिर मिलेगा मास ऑफ सन अप्रॉक्सीमेटली अपन जो पहले जब निकाले थे जब अप्रॉक्सीमेटली मास कितना था अपना 2 है ना. कोई फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में अपन देखूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा इसका मास 2 इंटू 10⁻30 ये सन का मास होता है मुझे पता है ना. आपको बुक में अपने अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1.96 इंटू 10⁻30 kg. ये 2 आए तो भी चलेगा है ना. आप 2 भी लिखते हैं तो भी चलेगा. By this way, we end up the today's topic of the gravitations. If anyone having the doubt related to this topic, please ask and clear your doubts. कोई doubts है क्या आपके टॉपिक के बारे में कोई इस तरह से अपन ये टॉपिक खत्म हो गए. आपको कोई भी डाउट्स होते हैं then again we will be arranging a revision period classes also. Okay, will that time can just once you read the topics thoroughly आप एक बार पढ़ो टॉपिक्स में कोई डाउट्स आते हैं तो पूछो मुझे and then we'll clear your doubts. Okay, कोई इसकी डाउट है अभी कुछ Okay, thank you for today's sessions.